Nice. All right. So I hope you guys can see me. What's up, guys? What's up, my sailors? How are you guys doing? What's happening? How are you guys feeling? Are you guys feeling good? A very good morning to all of you, and we are back for this JE sprint. And I am so pumped up right now. You have no idea. I'm so happy right now. बहुत मजा आने वाला है. Organic chemistry, we are ready to teach you. I am ready to teach you. A lot much is there. आज हम 11th class के ऊपर focus करेंगे. We are gonna learn some good content about 11th class and we're gonna see some good questions on that. हम आज 11th पे रहेंगे. Next session would be on 12th class JE topics. That will be happening in next session, right? So first, today's session is off on 11th class, right? I hope everyone is clear because organic chemistry is written. Some of you are asking, sir, what we are going to do in it? It's gonna be 11th class topics, ठीक है? तो आज 11th class के topic होंगे. Let me know कि सबको समझ आ गया है ये बात. Yes, मैं हिंदी में भी बोलूंगा बेटा. I'll speak in both the languages. I will, I'll go in both the languages. All right. Yes, फोड़ेंगे. किसी ने बोला फोड़ेंगे. Yes. All right. I can see your comments and yes, big ups to Vedantu. I have to say Vedantu is doing an awesome job here because abhi is sub everything is set. I'm in Bangalore right now. Everything is set, but I'm able to teach you. I'm doing YouTube from my home. I'm actually feeling so happy and amazed by what Vedantu is doing. Like big ups to Vedantu. Actually बहुत बढ़िया काम हो रहा है. ठीक है? So all right. So बच्चा, I hope you guys are happy and excited and ready. So पहला सवाल हम करने वाले हैं, right? Without wasting any time, let's move on. तो before we start, yes, you have to subscribe because a lot much is gonna come up. बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर आप सीखने वाले हो. So make sure you subscribe because a lot many things is will pop up into your notification and you have to be ready when you will subscribe, right? Then it will only happen. Very nice. All right. So ठीक है बच्चा. हाँ जेई पोस्टपोन हो गया उसके बारे में बात करेंगे. अभी तक it is not there on the official site, so I'm not gonna say anything. But yes, it is like काफी in many newspapers and many articles have been published so far. But yes, it has not been given, in on the JEE website. So that's why we are stopping. But yes, हो जाएगा. जहां तक लग रहा है, what we can expect कि हो जाएगा. शायद डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा. ठीक है. All right. ठीक है बच्चा. सो आई कैन रीड अप योर चैट्स एज वेल. मैं आपकी चैट्स भी देख रहा हूँ. सही चल रहा है. ऑल राइट, ऑल राइट. रिलीज हो गया तो बहुत बढ़िया. लास्ट यस्टरडे आई चेक, इट वाज नॉट रिलीज, राइट? तब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया था. अगर आ गया तो बहुत बढ़िया यार, फिर तो बहुत अमेजिंग है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ऑल राइट. सो लेट्स मूव ऑन बच्चा. सो आर यू गाइस रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? क्या तैयार हो? आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? लेट मी नो. प्लीज लेट मी नो. सर प्लीज स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. मुझे बोल दो, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. लेट मी नो. देखो, yes, let's start. All right, my sailors, just say, Captain, go ahead. Yes, theory is also here, don't worry. All right, my sailors, all right. ठीक है जी. First question coming on your screen. Coming on your screen. First question. Acha, before that, please make sure you are, you already know the JEE sprint schedule. It's with you. Take a screenshot of it. आज हमारी क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. राइट नाउ आई एम टीचिंग, राइट? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट सेशन इज ऑन 22nd March. डू नॉट मिस इट. एंड टुमारो वी विल आल्सो हैव अ MCQ. Whatever I am teaching today, we'll have another a quick revision on 20th as well. So be prepared for that. That's why I'm saying you have to subscribe to the channel. So all these notifications will come to you automatically. And take a screenshot of this so you'll be knowing what is happening, what will be happening throughout. Okay? This is next day schedule, 25th to 3rd of April. There will be two surprises you'll get to see. All right. तो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा. व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा? एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप withdraws electron density from an electron rich center. And what it does side by side beta, a very important thing I will write here, it stabilizes. Whenever you see an electron withdrawing group, it is going to stabilize. It is going to stabilize. Let me change the color of the pen. Let's take red, right? It stabilizes anion. जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ग्रुप, ये क्या करता है? इट स्टेबलाइजेस एनायन. एनायन को ये स्टेबलाइज करता है. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल NO2, CN,
COOH, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, these are all are electron withdrawing group. Whenever you see an electron withdrawing group attached to a system in which a carbon ion is there or a negative center is there, it is going to stabilize it, ठीक है। very important point in the theory I am teaching. I am going to use this point, अभी ये दिमाग में रखना, I am going to use this in a question as well, this particular point, ठीक है। Similarly, electron releasing group क्या होता है, which gives electron density into the system, and all R groups, all alkyl groups come under this category, ठीक है। सारे alkyl groups plus I देते हैं, and they stabilizes, किसको stabilize करते हैं ये, they stabilizes कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं। whenever you see a कार्बोकेटायन to which an alkyl group is attached or an electron releasing group is attached, generally alkyl groups, all alkyl groups are good, electron releasing groups, तो उनको दे देते हैं। और moreover, if you see an electronegative element having a negative charge on it, for example O minus, COO minus, they all are plus I groups, they वो भी कौन से ग्रुप है, plus I group है, तो they are going to increase the stability of the carbocation. I hope this point is also clear, ये सबको point समझ आया, सबको clear है। अब आ रहा है पहला सवाल, let me know you guys are clear, ठीक है, सब तैयार है। पहला सवाल, let me know in the chat box कि हाँ sir we are ready। yes say yes captain, increase my volume, I will increase my volume, ठीक है, मैं तेज बोलूंगा। और एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल ग्रुप, CH3 हो गया बेटा, C2H5 हो गया बेटा, सो मेनी एग्जाम्पल, एल्काइल ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आई लव द पार्टिसिपेशन, मजा आ रहा है यार, चैट बॉक्स फ्लड कर दो, बहुत अमेजिंग, आई एम लविंग इट राइट नाउ। पहला सवाल, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, लेट मी नो, मुझे जल्दी से बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। आया, यस, ओके, फ्यू ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, दे हैव स्टार्टेड, ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे यार मजा आ गया, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, क्या फीलिंग आ रही है यार, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सही बच्चों। तो देखो, लेट अस डिस्कस, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या करना है, व्हेनेवर दे टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको क्या काम करना है, फायर दी H+। व्हाट इज स्टेप नंबर 1, फायर H+। और आप उसके निकालने के बाद मेक, आई एम मेकिंग ओनली वन, यू कैन मेक इन योर होम, अपने जहाँ पे भी आप बैठे हैं, ऑन योर क्लास वर्क यू कैन डू, फायर दी H+, मेक दी कार्ब एनायन, और द एनायन यू शुड मेक, आई शुड से एनायन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लग गया। देखो बेटा, क्लोरीन इज अ माइनस आई ग्रुप, it is only minus I here is prominent as compared to plus M. This is the only exception where minus I is a stronger effect as compared to plus M. CH3, will give plus hyperconjugation and plus I effect. It's an electron releasing group. NO2 is a very strong withdrawing group, plus minus M and minus I. Minus M, it is a very famous minus M group, ठीक है? And minus M groups withdraws electron density from the center, stabilizing the anion. और आपको एक ही नारा याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ में, stable the anion, stronger the acid. Stable the anion, stronger the acid. So fire H plus, whatever the anion you will get afterward, check out, do you have an electron withdrawing group there? It is going to stabilize the system. Stable the anion, stronger the acid. Stable the anion, stronger the acid. So third one would be the most, because NO2 is a very strong minus M group. Then you will have first one because of minus I effect. Then you have a choice here. OCH3 is a plus M group. Plus M group, and mesomeric effect or resonance effect is stronger effect, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, तो प्लस M यहाँ पर रहेगा, which is going to destabilize the system, यानी कि फोर्थ must come at the last number, देख लीजिए बिल्कुल लास्ट पे है, यहाँ पे माइनस आई चल रहा है, इसलिए इट इज ऑन सॉरी, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, इसलिए इट इज ऑन सेकंड इफेक्ट। एंड यू गाइस नो AERHI, aromatic compounds are very stable, then equal RS, then resonance, then hyperconjugation, then inductive effect. Inductive effect सबसे लीस्ट रहता है, सबको समझ आ गया, सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक रहता है एज कंपेयर टू दिस, आई हैव गिवन द ऑर्डर, इज दैट क्लियर? क्या आगे बढ़ जाओ, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन?
एम होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, इट इज रेजोनेंस। एम होता है रेजोनेंस, आई होता है इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस आप जानते हैं वेरी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, हु हैज आंसर्ड करेक्टली, बहुत बढ़िया, सो मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम अप फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दिस वन फॉर मी सेलर्स, प्लीज इसको जल्दी से आंसर बताइए इसका। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी। E stands for equal RS, AERHI, ERI, ठीक है। E stands for equal RS there. थ्योरी है बेटा, थ्योरी है, छोटी छोटी थ्योरी जरूर दूंगा। Now give me the answer for this question. It's a multi-correct question. It's a multi-correct, so I'm waiting for your answer. It's a multi-correct question. Hint दे रहा हूं, I'm giving you a hint. Draw Fisher. क्या काम करो, Fisher projection बना लो। Draw Fisher projection, it will make your job easy. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, कुछ कुछ बच्चे बहुत अमेजिंग आंसर्स दे रहे हैं। वॉल्यूम के लिए एक काम करता हूँ, लेट मी कनेक्ट माई सेल्फ टू दिस ऑडियो। आई जस्ट पुट अ वायर, लगा लेता हूँ, हेडसेट लगा लेता हूँ, सो दैट वॉल्यूम वुड बी इंक्रीज्ड। One second, I'm taking care of the volume part. अब आ रहा है बेटा? You can hear me better? Answer is, for this question, what is the answer? Answer is A, B, C or 1, 2, 3. How many of you got it right? 1, 2, 3 इसका answer है. So its answer would come by making a Fisher projection. All you have to do is make a Fisher projection, boys and girls. जब Fisher projection बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आ गया. This is your M, this is your N, this is your O, this is your P, this is your Q. ठीक है? आप चेक करिए. This is R center, this is S center, right? ये दोनों ही R हैं. Correct? So it is a diastereomer. M and N are non-superimposable, diastereomers. इनके बीच कहा गया stereoisomers हैं, ये diastereomers हैं. Similarly, if you talk about M and O बेटा, देखो, this is R, this is R, this is S, this is S. It is completely identical. So ये दोनों identical है. M and O are identical, बिल्कुल सही. Then if you compare M and P, beta M and P देखोगे, it is just the reverse. If it is R center, this has become S, completely non-superimposable बन गया. देखो S, then it has become R. Non-super non-superimposable mirror image बन गया. इस कारण से ये आंसर भी यहाँ पर सही है. यानी कि first three statement are right. If you compare last statement M and Q, last statement में देखो, अगर you compare M and Q बेटा, अगर आप M और Q को कंपेयर करोगे, यू वुड फाइंड इट इज एक्चुअली द सेम. ये बिल्कुल सेम ही है. नहीं नहीं, सेम नहीं है. पहला R है, दूसरा भी R है. देन दिस इज S, this is R, so it is also a diastereomer. M and Q are diastereomers, but in the options M and Q they were saying it was identical, but the answer is they are not identical, they are actually diastereomers. ठीक है, सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया है? फोर्थ करेक्ट नहीं है, एम एन क्यू बेटा आइडेंटिकल नहीं है, दे आर डाइस्टीरियोमर्स. ये डाइस्टीरियोमर्स हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आर एन एस जस्ट डेक्स्ट्रो एंड लीवो, और इट्स द नॉमेनक्लेचर होता है जब आप बताते हो बाय लुकिंग एट अ कंपाउंड की कौन सी रोटेशन, मतलब क्या होगा आर और एस. इट्स अ नेम, सिप रूल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताने का तरीका होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 2 3 इज द आंसर. मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट. ठीक है, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई बात नहीं, जिसका वो गलत हुआ है कोई इशू नहीं, इसमें आंसर बताओ. इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन. लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. हु गॉट इट रॉन्ग, नो वरीज. अब इसमें अपने आप को रिडीम करो, ट्राई टू रिडीम योरसेल्फ. गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताओ. कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. All right, one person is saying B.
अब तक कोई सही आंसर नहीं दिखा मुझे. Come on, flood the chat box with your answers बेटा. Right or wrong doesn't matter. हम सब बात करेंगे बेटा, असाइनमेंट्स की भी बात करेंगे. अभी क्वेश्चंस की बात चल रही है. गिव योर आंसर, ठीक है. अभी यू ट्राई फोकस योरसेल्फ. एवरीवन शुड गिव आंसर्स राइट नाउ. थैंक यू. यस है ना. किसी ने सही बोला. सी और डी लगभग यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई है. दे आर बोथ सेम, ठीक है. तो आप सी तक ही ले लो, ठीक है. लेट्स से सी तक ही है. डन. ऑप्शन सी एंड डी बिल्कुल सही. देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक. नो इश्यूज. आई एम सेइंग ओनली 3 ऑप्शंस आर देयर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन? ऑल राइट, ठीक है जी. तो सी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल आपको क्या करना है, देखो बेटा. यू विल नेम इन सच अ वे दैट द functional group should get the lowest number. When you will decide your carbon chain, the functional group should get the lowest number. That is the rule. तो वही follow किया मैंने. 1 2 3 4 5 6. एक क्वेश्चन था कि चला नंबर डबल बॉन्ड के आगे प्रेफरेंस आपको फंक्शनल ग्रुप को देनी है. You have to give preference to the functional group. That's the only way. That's the only way. So 3 keto. अब देखो, this is also a functional group, but now it has become a substituent because we have assigned that CHO would be our main functional group. So 3 keto, 2 methyl, this is our CH3, this is our substitution, CH3, then methyl, hex because 6 carbon, 4 enol. When you know whenever aldehyde is there, the name will end with the sound of AL, ठीक है. AL की sound से नाम खत्म होता है अल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं. I hope it is also clear you. Moving on to the next question, ठीक है. आगे बढ़ जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं. अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स यू गाइज हैव टू आंसर. बहुत अमेजिंग सवाल है. जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर होगा. हिंट दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू अ हिंट बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं. लोएस्ट पीके वैल्यू मींस विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस हेयर. ये इसका होता है. लोअर द पीके स्ट्रॉन्गर इज द बेसिक नेचर. Lower the pKa, stronger is the pK, this one, basic nature. Keeping this in mind, please answer what will be the answer for this particular question. Acha, keep this also in mind. It is an aqueous medium. Aqueous medium में पूछा गया है बेटा. तो क्या आंसर होगा? Waiting for your response. Wow, 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 wow. Okay. If you notice, these are methylamine. These are methylamine. Right, all are methylamines. In the case of methylamine in aqueous medium, boys and girls, the order is 2 degree. Methylamine is more stable than primary, then it is more stable than tertiary. This is the order. इसका मतलब second degree amine, second degree methylamine has to be the most strongest base. ठीक है, strongest base. इसका pKa बहुत कम होगा. इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, higher Kb. Higher the Kb value, higher would be the basic strength. Lower the pKb value, lower would be the, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, higher, इधर लिख रहा हूं, higher Ka. Higher Ka बोल लो या lowest pKb पूछ लो. Higher A नहीं है बेटा, I'm sorry, B है. Higher Kb पूछ लो या फिर lowest pKb पूछ लो, बात एक ही है. It means stronger base. It means stronger base. ठीक है, सबको समझ आ गया, क्लियर हुआ ये पॉइंट. मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. लोएस्ट पीके और हायर लोएस्ट पीके बी और हायर के बी मीन्स द सेम थिंग, मीन्स स्ट्रॉन्गर बेस. आई होप ये क्लियर हो गया है, सबको समझ आ गया है. समझ आया बच्चा? क्लियर हुआ? ठीक है. तो दिस इज द ऑर्डर एंड हेयर द लीस्ट बेसिक कंपाउंड वुड बी aniline because lone pair would be involved in resonance. Lone pair will be involved in, lone pair is involved in resonance. ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? हाँ, PKB बेटा, PKB बाय मिस्टेक आई सेड K, वो माफ करना मुझको. आई एम सेइंग लोएस्ट PKB. ठीक है, लोएस्ट PKB और हाईएस्ट KB वैल्यू मींस द सेम, मींस स्ट्रॉन्गर बेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आई होप ये क्लियर हो गया है. आंसर इसका ऑप्शन ए है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डी इज द लीस्ट वाला. डी इज नॉट, दिस इज द लीस्ट बेसिक. दिस इज लीस्ट बेसिक. आगे बढ़ जाता हूं.
ठीक है, ये रीजन है, यहाँ पे रेजोनेंस में चला गया, इट वेंट अंडर रेजोनेंस, सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन. ऑल राइट, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इफ द R and S enantiomer of an optically active compound differ in? What is the answer to this question? What is the answer to this question? जल्दी से बताओ. Please let me know. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. Very good. Yeah, loving the response right now. Yes, answer is option C. They will, differ in the way how they will rotate the plane polarized light. ठीक है, एक dextro rotatory होगा, एक levo rotatory होगा. That's it. That's the only difference in R and S. ठीक है. I hope this point is also clear. ठीक है, ये point भी आपको समझ आ गया. मास्क लगा लूंगा बेटा, मास्क लगा लूंगा. Moving on to the next one. हाँ, बहुत अमेजिंग सवाल है. क्वेश्चन नंबर 7. बहुत अच्छा सवाल लगा था, बड़ा सिंपल सा है. जल्दी से इसका आंसर बताओ. व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बॉयज एंड गर्ल्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. इसका आंसर बताओ. सी फॉर करुणा बोल रहा है कोई. बोलता है इन अ कंपाउंड एक्स ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट्स. एक्स इज, देखो बेटा, आपको पता है, whenever this is the angle, the hybridization has to be sp3, then only you will get tetrahedron मिलता है, you get the angle as 109 degree 28 minutes. If you notice all your compounds, सब बना लो यहाँ पर. If you notice all your compound, all are tetrahedron, all are sp3. But if you notice CCl4, it is the only compound in which perfect symmetry is there. So distortion would not be there from the regular tetrahedron, ठीक है, from the regular angle. That's why the answer is CCl4. Otherwise, others, if you see, one atom is hydrogen, other atom is chlorine, other atom is iodine, like this it is happening, right? So there will be a distortion, slight distortion from the angle. Hence the answer is लोन पे तो बेटा किसी में भी नहीं है ना? तो ऐसा आंसर नहीं सोचना, आपको देखना है कि एटम डिफरेंट हो गया है. समवन सेड लोन पेयर वाला चीज वो चीज नहीं है. अरे थैंक यू सलीना सो मच, है ना, थैंक यू सो मच. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. I look like Sundar Pichai because I have shaved my beard and I am also feeling like this. Yeah, I look different. All right. आगे बढ़ेंगे. Moving on to the next question. Amazing सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है. जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ. जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ. बेटा अभी इतना ही पॉसिबल है, स्क्रीन साइज इससे तो फट जाएगा फिर आप कहोगे सर दिख नहीं रहा क्वेश्चन. इट विल जस्ट खराब हो जाएगा वो. या जल्दी से आंसर कर दीजिए. व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. बातें नहीं, आंसर डायरेक्ट. वर्क फ्रॉम होम एंड टीचिंग द मास एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. आई एम एट माई होम इन बैंगलोर. मैं बैंगलोर में अपने घर में आराम से बैठा हुआ हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ. कितना अमेजिंग है ये. यूट्यूब सेशन ले रहा हूँ मैं लाइव. हाउ अमेजिंग इज दैट? तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर क्या है जल्दी से बताओ. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन A has all the carbon and hydrogen in a single plane, okay, and all the carbon bonds have the same length, less than 154 angstrom and more than 134. अरे अगर आप नोटिस करो, सिंगल बॉन्ड होता है 154 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड होता है 134. बट your angle is the bond length, sorry मैं angle बोल गया, I'm really sorry, the bond length I'm talking about, the bond length is in this variation. If you are saying bond length is between this, it means there must be a partial double bond character, PDCH. प्यार से क्या बोलते हैं इसे? PDCH, partial double bond character. And partial double bond character must arise only when all the electron density is moving, is delocalized. Whenever electron density is delocalized, then only you will get partial double bond character. 1 point. When you see your electron density is delocalized, when it is a case of resonance. And for resonance, point number 3, and for resonance, what is the condition? The atom has to be sp2 hybridized. आपके सारे atoms कौन से उसमें होने चाहिए? एंगल में होने चाहिए. जनरली sp2 hybridization होनी चाहिए. अगर sp2 hybridization होगी,
then only it is possible. So answer has to be ऑप्शन डी. समझे? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्लियर हुआ? यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है, partial double bond character आया, it means all the atoms are in same plane. If they are in same plane, there has to be, it has to be sp2 hybridized compound, and sp2 hybridized compound angle is 120 degree. That's why answer is 120 degree. That is option D. Clear? मैं फिर से बोलूंगा, रिपीट कर दिया है, ठीक है, पूरा मैंने रिपीट कर दिया है, आपको समझ आ गया है, ठीक है. आगे बढ़ रहा हूं. शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जिसको थोड़ा सा नहीं समझ आया, रिपीट में देख सकता है बेटा. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तभी आता है जब रेजोनेंस होती है. अगर रेजोनेंस होगा तो क्या है, इसका मतलब आपके सारे एटम सेम प्लेन में हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2, और sp2 में बॉन्ड एंगल क्या रहता है, 120 डिग्री. उसके लिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ठीक है. ऑल राइट माय सेलर्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के लिए, आगे बढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, ये भी हो गया. नाउ थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं. लेट्स स्टडी बिट ऑफ अ थ्योरी. हमारे को पता है, इफ यू वांट टू डू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन वी यूज HNO3 and H2SO4. Nitronium NO2 plus is the electrophile which attacks on the benzene ring, gets there. If you want to do halogenation of benzene, you have to use iron as a catalyst. आप फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते. Ball-Schiemann is the only method, only reported method. If you want to put fluorine on benzene, then you have to use Sandmeyer group of reaction and then add CuCl2. आपको idea है उस चीज के बारे में. Ball-Schiemann method is the only reported way of actually making fluorine on the benzene, of putting fluorine on the benzene. Ball-Schiemann method सबसे बढ़िया है. Fluorination directly cannot be done. Iodination can be done by using HiO3. ये पॉइंट मैंने यहाँ पे 3 समझाए. इसी तरीके से if you want to do sulfonation boys and girls बहुत अमेजिंग है. ये ipso substitution का भी पार्ट है. If you want to put SO3H group on benzene, you have to use fuming H2SO4. आप oleum भी इस्तेमाल कर सकते हो. You can also use oleum. And you remember we had done so many reactions of ipso substitution. I have talked about this in Killer 5 series as well. I have talked about this in in my previous sprint also. ठीक है. If you want to know more about this, check out my Killer 5 GOC. In that I have talked about how sulfonation can also be removed. Desulfonation and sulfonation is an example of ipso substitution. एक extra point, if you want to learn more, do check out that Killer 5 series also. आपको उसमें कुछ अच्छा मिल जाएगा. ठीक है. Similarly, Friedel-Crafts reaction, benzene के ऊपर if I want to put R group, I will use Friedel-Crafts method. Iron is again catalyst there. FeCl3 इस्तेमाल कर लेते हैं, AlCl3 इस्तेमाल कर लेते हैं, aluminium इस्तेमाल भी कर सकते हैं. Similarly, if you want to also put acyl group, COR group, you again use Friedel-Crafts acylation. ठीक है. Acyl group is nothing but what? C double bond O R group. ठीक है. And alkyl group is R group. If you want to put R group on your benzene, you can use Friedel-Crafts reactions. Is this point clear? ठीक है. आगे बढ़ जाऊं. Yes, aniline does not because you use aniline क्यों नहीं करता बेटा? इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. Because you used a Lewis acid and aniline is full of electron density. Lewis acid will react with NH2 there and it will not give the desired product. ठीक है. जो AlCl3 रहता है वो Lewis acid होता है, वो अमोनिया को देखकर बावला हो जाएगा. It will form a bond. वो बॉन्ड बना लेगा और जो जिस काम के लिए उसको रखा गया था, it will not do the job. That's why aniline नहीं लेते. ठीक है. बहुत बढ़िया. आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं. शॉर्ट्स रिएक्शन भी कर सकते हैं फॉर फ्लोरिनेशन, राइट. Ball-Schiemann काफी बढ़िया रहता है. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आपको 11th क्लास में आया है, सबने पढ़ा है और मैं जानता हूं काफी बच्चे भूल चुके हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन. प्लीज बताओ इसका आंसर क्या है. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है और काफी बच्चे गलत देंगे, मुझे पक्का पता है. As I expected, different answers are coming up, but कुछ बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं. वेरी गुड. GOC है इस सेशन के अंदर. इस सेशन के अंदर आपका वो भी आ गया. GOC में पूरा मैंने ले लिया, पूरा GOC ले लिया. हाइड्रोकार्बन भी उठा लिया है, तो सब कुछ है इसमें. बेटा बहुत बढ़िया. So I'm getting mixed reaction. Answer is base बेटा.
आंसर इज एज अ बेस। ये 11th क्लास का रेगुलर क्वेश्चन है, रेगुलर मैकेनिज्म है, एंड मेनी ऑफ यू गॉट इट रॉन्ग। चेक दिस आउट बॉयज एंड गर्ल्स। आंसर इज सी। देखो H2SO4 HNO3 व्हेन यू विल रिएक्ट बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर H2SO4 accepts the, gives away the proton, I'm really sorry, gives away the protons, and HNO3 accept that proton, so it acts as a base. In next step it removes water from it and become nitronium ion, and that is your electrophile। यही आपका electrophile है। what is the electrophile and nitration? NO2 plus nitronium ion is the electrophile। सबको समझ आया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, जो बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, that's why I have taken this up। ठीक है, C is the correct answer। HNO3 acts as a base। HNO3 किसकी तरह काम करता है? एक बेस की तरह काम करता है। आई होप ये आपको समझ आता है, क्लियर होता है। ठीक है, यो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दो। अब मैंने GI के ऊपर क्वेश्चन दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इसे हम प्यार से GI भी बोलते हैं, प्यार से हम इसे GI भी बोलते हैं। लेट मी नो, जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर। भूख लग रही है तो आराम से, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करके बैठते हैं, हम पढ़ते हैं। पानी पी सकता है, पानी, आई कैन गिव यू परमिशन टू ड्रिंक वाटर, बट खाया नहीं खाना है अभी, तो फोकस से पढ़ना है। बहुत बच्चों ने आंसर दे रहे हैं, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखो मैं आपको ना एक चीज आपके लिए बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, ध्यान देना। फॉर फाइंडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बेटा कंडीशन क्या है, मैं सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना। each carbon of the double bond, each carbon of the double bond must have two different groups attached to it। This is one condition of GI। The carbon of the double bond, each carbon of the double bond must have two different groups attached to it, पहली बात। And these two different groups, if you are having there in both the carbons, these two different group, one of the group must be common। एक group common होना चाहिए। In this particular example you saw both of the groups were coming out common, but the thing is both the groups which are attached to the carbon, the two groups which are attached to the carbon of the double bond in both the sides must be different from each other, and one group must be shared। एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए तभी GI मिलेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दो ग्रुप्स होने चाहिए अलग अलग दोनों एंड पे, और वो उनमें से एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, तभी आप सिस और ट्रांस बना पाओगे। ठीक है, तभी आप सिस और ट्रांस बना पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पर अगर कभी ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि दोनों ग्रुप्स ही सेम है, दोनों ग्रुप्स ही सेम है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन डी के अंदर अगर आप बात करो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट, ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, ऐसे करके मैंने बना दिया। मान लो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। चेक दिस आउट बेटा, वन सेकेंड, चेक दिस आउट बेटा, ये क्या हो गया, वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चेक दिस आउट बेटा, हम ब्यूटेनॉल की बात कर रहे थे, यहां पर क्या दो ग्रुप सेम हो गए? इफ टू ग्रुप्स आर सेम इट विल नेवर बी अ GI, इट विल नेवर बी अ GI। आपके दोनों एंड्स पे बोथ द कार्बन्स ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, एंड आउट ऑफ दिस वन ग्रुप कैन बी कॉमन, वन ग्रुप कैन बी कॉमन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको बात समझ आई, सबको क्लियर हुआ? तो इसकी कारणवश व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन ए। बात समझ आ गई? ये गलती बहुत करते हैं, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। अब सबको समझ आ गया, पूरा हिंट मिल गया, अब तो गलती नहीं होगी। अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन आ जाए, पे अटेंशन, बाई चांस ऐसी कंडीशन आ जाए, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर डी है, यहां पर ई है, then it will go for E and Z isomerism। It is not a cis or trans। For cis or trans, let us say this is A, this is B, let us say this is D, this is A, this is going to be cis and trans। देखिए आप, both the groups were different from each other and one of the group was shared and was common। सबको समझ आया? सबको समझ आया कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालते हैं? क्लियर हो गया बच्चा? हम EZ की बात नहीं कर रहे, वहां पे हाई प्रायोरिटी की बात करते हैं। दिस इज नॉट EZ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिस एंड ट्रांस। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, जो क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं ना।
अब देखो, आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज ई जेड और व्हाट इज, वो तो मतलब थोड़ा तो मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग जानते हैं, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम 5 तारीख को था, तो इतना मान के चल रहा हूँ, थोड़ा बच्चा जानता है। ऑलराइट, आगे बढ़ूंगा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखो जो मैंने पढ़ाया यहाँ पर, ये सिस और ट्रांस आ गया, ट्रांस सिस। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी 12th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th क्लास, SN2 एंड SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात करूंगा तो द रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म, योर न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज योर सबस्ट्रेट। ठीक है, सिमिलरली द रिएक्शन हैपेंस इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में जाती है। देखो कॉन्ट्ररी है अपने नाम से, थोड़ी आयरनी है यहाँ पर। SN2 रिएक्शन मतलब एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी अटपटी चीज है पर ऐसे याद कर लो। SN2 मतलब एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है। रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, TS से थ्रू पास करता है। देयर इज नो कार्बोकेटायन, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, आई थिंक इट्स द इजीएस्ट वन। द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, पीछे से अटैक मारता है। अगर पीछे से अटैक मारेगा तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी, जैसे छतरी बहुत हवा चलती है, जब आपकी जो छतरी होती है, अम्ब्रेला होता है, वो इन्वर्ट कर जाता है क्योंकि हवा उसके पीछे से घुसती है और उसे इन्वर्ट कर देती है, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाती है। इसी चीज को इन्वर्जन बोलते हैं। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका लीविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक मारता है और लीविंग ग्रुप को बाहर धक्का निकाल देता है, धक्के से इट विल से ओके जाओ बाहर जाओ यहाँ से। सबको समझ आई ये बात? तो हमेशा आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है हमेशा इसके अंदर। ठीक है, और बढ़िया। अब अटैक मार रहा है पीछे से, इट हैज टू अटैक फ्रॉम द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड, दैट्स व्हाई इट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ 123। अल्काइलाइड हमारा कैसा होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन अ प्राइमरी अल्काइलाइड इज देयर, सेकेंडरी उसके बाद, टर्शियरी उसके बाद। तो आप ऐसे याद कर लो 123। एक्टिविटी क्या रहती है, रिएक्टिविटी कैसे रहती है, किसकी रिएक्टिविटी, किस अल्काइलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी? 123। 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या मैं अपनी बात समझा पाया? क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? सब कुछ समझ आया? 123 ऐसे बोलता हूं मैं, अब आराम से याद कर लो 123। ठीक है, बढ़िया जी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, मूविंग ऑन। SN1 रिएक्शन, ये रिएक्शन 2 स्टेप में खत्म होती है, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप and it actually follows, rate of the reaction depends only on one concentration term, not है ना, not on two, only on one concentration term, that is your nothing but your substrate। ठीक है, जो आपने reactant लिया होता है, जो आपने alkyl halide लिया होता है, तो जितनी जल्दी alkyl halide आपका कार्बोकेटायन बना दे, यहाँ पर the reaction passes through via कार्बोकेटायन, and if कार्बोकेटायन is stable, rate of reactions would be very high, so it follows the order of 321। 3 degree is more stable than 2 degree, and 2 degree carbocation would be more stable than primary carbocation. So rate of the reaction depends upon the carbocation formation, and the reactivity of the alkyl halide has to follow the order of 321। आपसे पूछे कौन जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा SN1 के अंदर, आप बोलोगे 3 डिग्री alkyl halide will react very fast। ठीक है, because it will form a better carbocation, stable carbocation, the reaction will go very fast। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? सबको क्लियर हो गया है? इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां पर बच्चा जरा मुझे एक बात बताओ, ये बन जाता है कार्बोकेटायन। क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन एक प्लेन में रहता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कार्बोकेटायन मान लीजिए एक प्लेन में रहता है। अब प्लेन में अटैक फ्रंट ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, और मान लीजिए अगर ये प्लेन है तो फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है। ठीक है, सो इट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल कैन हैपन फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज बैक, सो दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स अ रेसिमिक मिक्सचर। मतलब आपका फ्रंट अटैक और बैक अटैक जब इक्वल हो जाता है तो आपका जितना भी ओवरऑल रिजल्ट आता है, मान लीजिए 50 सबस्ट्रेट आगे से आ गए, 50 न्यूक्लियोफाइल आगे से आ गए, 50 पीछे से आ गए, तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपका? आप बोलोगे देयर इज नो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, इट इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर। उसको क्या बोल दोगे आप? रेसिमिक मिक्सचर बोल दोगे। पहले में बना था इन्वर्जन, यहाँ बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? यस, ठीक है। अगर ये भी आपको समझ आ गया है बेटा, ये भी बात समझ आ गई है, तो हम बढ़ेंगे आगे। अब देखो, इसके लिए आगे बढ़ता हूँ, क्लास खत्म नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब देखो क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन बढ़ गए हैं, सुनना मेरी बात। पोस्टपोन हो गया, आपने भी कंफर्म कर दिया जेई का, हमारा पोस्टपोन हो चुका है, हमारा जेई पोस्टपोन हो गया, एंड इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर नॉलेज। आपके अभी भी कंसेप्ट अगर वीक है, आई कैन सी इफ यू आर एक्चुअली वीक, अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, डू ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। आप देखिए, इसके अंदर आपको लास्ट मिनट बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, नॉट ओनली ऑफ केमिस्ट्री, इट विल बी ऑफ PCM,
ठीक है, आपको पूरा समझाया जाएगा. देयर विल बी सम न्यू क्वेश्चंस दैट यू विल कम अक्रॉस एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स आल्सो इफ यू कैन ग्रास्प. ठीक है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. And it is starting, actually it has started yesterday, so you have not missed out way too much. आपको बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स दी जाएंगी. आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे because you have still a lot many doubts which you can actually solve with us. आप वो सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो. Then there are 45 classes by best teachers, 3 sessions per day, Monday to Saturday. अभी भी बहुत कुछ है जो आप हमारे से ले सकते हैं. इस क्रैश कोर्स से आप पूरा निकाल सकते हैं. तो आई विल एक्चुअली सजेस्ट, क्योंकि जेई हल्का सा पोस्टपोन हो चुका है, देयर इज अ चांस यू कैन लर्न बेटर. जो डाउट्स है उन्हें खत्म कर लो. एंड बेस्ट पार्ट, दिस वाज ऑफ 20K यार, 20,000 का था ये. नाउ इट इज ऑफ अराउंड 3K यार, मतलब 3K भी एग्जैक्टली नहीं है. गो फॉर इट. ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर इट, बाय दिस कोर्स. क्या मेरी बात समझ आ रही है? बहुत अमेजिंग है. एंड इफ यू यूज माई कूपन कोड दैट इज HMCC, use the link here in the description box. हमारे YouTube के नीचे description box में I have given a link. Use the coupon code HMCC. You will get a heavy discount. This discount would be available and you can actually learn better. सबको मेरी बात समझ आ रहा है? जिसको थोड़े से भी डाउट्स हैं, जो यहाँ पर थोड़ा परेशान हो रहा है कि यार आप सर एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे ENZ हो गया, किसी को RNS में डाउट्स है, वो सारी चीजें इस क्रैश कोर्स में कवर कर सकते हो. तो आपके पास अभी भी टाइम है. देयर इज द जेई हैज बीन पोस्टपोन्ड. तो एक्चुअली यू कैन टेक, दिस इज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज. आप सीख सकते हैं वेदांतु से. सबको समझ आया? ये बात क्लियर हुई है ना? यस, रेजोनेंस इक्वल RS इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस. ठीक है, प्लस M और रेजो आर सेम थिंग है. प्लस M और रेजोनेंस इज सेम थिंग ओनली. ठीक है, इक्वल RS मींस व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली and resonance means when charge is distributed but not equally. ठीक है, दोनों ही रेजोनेंस है. किसी ने सवाल पूछा, मैंने उसका आंसर भी दे दिया. हाँ जी बेटा, इट इज अप टू एडवांस. एज पर योर लेवल वी विल आल्सो इंक्रीज योर क्वेश्चन डिफिकल्टी. ये क्रैश कोर्स में आपका अगर लेवल अच्छा है, हम उसमें क्रैश कोर्स में क्वेश्चंस भी अच्छे बढ़ा देंगे एज पर योर लेवल. ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लास्ट मिनट है, काफी सारी चीजें सीख सकते हो, सस्ता भी है. ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन. आगे बढ़ जाता हूं, आगे कर रहा हूं. शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ जाऊं? Shall I move on to the next question? Let me know. Yes, say sir. Yes, let's go for next one. SN1 gives racemic mixture. Yes, बच्चा. All right, all right, all right. बहुत अमेजिंग क्वेश्चन SN2 का. जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर. What is the answer to this question? What is the answer to the question waiting for you guys to answer? जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका. फंस गए, काफी बच्चे फंस गए हैं. काफी बच्चे फंस गए हैं, काफी बच्चे फंस गए हैं इस अच्छे क्वेश्चन में. मैंने फंसा दिया भैया. थोड़ा सा कंसेप्ट देना पड़ेगा. देखो जरा, सुनो. आंसर इसका है ए. किसी ने ए नहीं बोला, किसी ने भी ए नहीं बोला. आंसर है इसका ए. कोई नहीं बोला, कोई बात नहीं, समझाते हैं. जरा ध्यान देना. व्हेन यू टॉक अबाउट योर, लेट्स से दिस इज R, this is R dash. When a nucleophile attacks, बेटा, when a nucleophile attacks, it attacks in such a manner कि ये जो ये लोब है बैक पीछे से अटैक मारता है और इस तरह से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है. It starts forming a bond there. कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है. सब एग्री करेंगे? ये लोब खिंचता है. This lobe starts getting elongated. यहाँ पे Cl होता है, यहाँ पे OH माइनस होता है, OH होता है. So it is an unstable situation. It is called as transition state. If you notice, carbon is attached to, और यहाँ पे partial negative charge आ जाता है. If you notice, this carbon is attached to 5 bonds, which is an unstable situation. एक unstable situation होती है, बहुत highly reactive होता है ये TS. But if you notice, this TS has a partial negative charge. This TS has a partial negative charge. और मैंने बताया था, whenever negative charges are there, if you have an electron withdrawing group, if you have an electron withdrawing group attached to it, it increases its stability. It increases its stability, and stable the TS, faster the reaction. क्या नारा याद रखोगे? Stable the TS, faster the reaction. Faster the reaction. I repeat my point again. बहुत important बता रहा हूँ मैं यहाँ पे बात. Stable the TS, faster the reaction. ठीक है?
तो यहां पर अगर आप नोटिस करो बेटा, isn't it a withdrawing group? अल्फा पोजीशन पे इसके एडजेसेंट ये आपका ये जो क्लोरीन है, this carbon is called as alpha carbon, it is alpha carbonyl group. So it is going to increase the stability, it is going to act as an electron withdrawing group, it is going to increase the stability of the TS, hence faster reaction. Stable the TS, faster the reaction. बेटा C भी हो सकता था आंसर, पर ये बोल रहे हैं which one is the excellent substrate. C से बेटर A हो गया ना, because the TS is stabilized. बच्चे जो C लिख रहे हैं आप सोच नहीं रहे मेरी बात, पूछ रहे हैं कौन सा एक्सेलेंट है. C अच्छा है पर इट इज नॉट एक्सेलेंट इन कंपैरिजन विद A. समझ आया? वाई नॉट C का आंसर दे दिया, इट हैज टू बी A ओनली. स्टेरिक भाई, बट स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज ना. TS इज ट्रांजिशन स्टेट. समझ आ गया? सबको क्लियर हुआ? समझ आया? इन्वर्जन ही तो है बेटा, बैक अटैक होगा बच्चा. ये मैंने बैक अटैक ही तो दिखाया है. OH माइनस इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक. हमेशा SN2 रिएक्शन बैक अटैक से ही प्रोसीड करती है. बट बच्चा ये अल्फा ग्रुप का TS की स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर ज्यादा हो गया. स्टेबल द TS, फास्टर द रिएक्शन. एंड अल्फा कार्बोनाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी फास्टर. क्राउडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर हो गया स्टेबिलिटी का. ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ अ केस. हाँ, कोई पूछ रहा है सर क्राउडिंग है, बट या बेटा, बट द स्टेबिलिटी ऑफ TS इज मच हायर, दैट्स व्हाई दिस रूट वुड बी प्रेफर्ड. क्योंकि उसको अटैक मारने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाएगी, इसलिए ये फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा. इट इज वन ऑफ द फैक्टर. समझ आया? क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? वाई नॉट D? तो D तो कभी ऑप्शन में नहीं था. 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉलो ही नहीं करता, 123 ऑर्डर फॉलो करता है. अल्काइल हैलाइड हैज टू बी 123. समझ आ गया? मूविंग ऑन. shall I move on to the next question? Do I have the permission to move on to the next question? Why not be? It is a PDCH टूटेगा ही नहीं. यहाँ पे PDCH है, partial double bond character. It does not go for SN1. It does not go for SN2 reaction. Partial double bond character है यहाँ पर. Cl का bond टूटना ही नहीं चाहेगा. PDCH. Why not B? I am asking because of partial double bond character. The nucleo, there will be a double bond. It will be difficult to break CCl bond because of this partial double bond character. यहाँ पर क्लोरीन पे लोन पेयर है, यहाँ पर partial double bond character आ जाएगा. And it is a very very stable वाला compound. नहीं, not PDCH. यहाँ पे PDCH नहीं आएगा यार. यहाँ PDCH नहीं आएगा. नो PDCH. वो Cl पे जब होगा तो PDCH होता. यहाँ पे PDCH नहीं आएगा, पर B इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा. द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड बाय कार्बोकेटायन. यहाँ पर आप हिंड्रेंस ले लोगे. दिस विल बी टेकन एज अ हिंड्रेंस कि यार ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ले लिया जाएगा. नो PDCH. यस, नो PDCH. PDCH यहाँ आता, PDCH इस वाले क्वेश्चन में आता, पर वो है ही नहीं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड? कौन सी रिंग हाईली स्ट्रेन्ड है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दो. बेटा मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, बड़ा सिंपल सा चक्कर है इसका. इफ द TS is stable the TS, faster the reaction. SN2 reaction proceeds in such a manner that a partial negative charge appears on the transition state. Stable the TS, faster the reaction. And if by chance you see an electron withdrawing group in a transition state, it is going to stabilize this negative charge, causing the reaction to move faster. The question was, so that substrate would be better. The question was, which of the following will give better SN2 reaction, very fast SN2 reaction? Those reaction in which, first of all, the order is 123. आप देखो, this is a primary alkyl halide. This is also a primary alkyl halide. ठीक है, but in this particular question, there was an electron withdrawing group.
and stable the TS, faster the reaction. Hence option A is the correct. Their steric hindrance would not be considered. यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए आंसर देना है ऑप्शन ए. मैंने अपनी बात सबको समझा दी है क्या? सबको समझ आ गया है? ये वाला बात मैंने कर ली है. जिसको डाउट था मैंने समझा दिया. Now I am moving on to this question. Let me know which of the following is a highly strained ring. कौन सी सबसे ज्यादा highly strained ring है? जल्दी से मुझे आंसर बताओ. Waiting for you guys to react. Give me the reactions here. Respond करिए. आंसर इसका है क्या? बोल दूं आंसर? आंसर इज सी. आंसर इज सी. करेक्ट. आंसर इज सी. सी क्यों है आंसर? बड़ा सिंपल सा है. रिंग स्ट्रेन इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रिंग. जितनी साइज छोटी उतना एंगल स्ट्रेन ज्यादा, रिंग स्ट्रेन ज्यादा. तो 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा. हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. आई होप सबको समझ आ गया था. काफी बच्चों ने आंसर सही दिया था. नाउ दिस क्वेश्चन इज अ जेम. इट्स अ जेम ऑफ अ क्वेश्चन. जेम ऑफ अ क्वेश्चन. प्लीज जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या है. बहुत बढ़िया सवाल है यार. हमारे एक टीचर हुआ करते थे, गुड क्वेश्चन लिख देते थे वो हमेशा मैथ्स पढ़ाते हुए. मैं उनसे मैथ्स पढ़ता था तो गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, तो वैसे वो बोलते थे. तो इट्स अ जेम ऑफ अ क्वेश्चन. जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा. और ये पूछा है, मैं फिर से बोलता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट पूछा है बेटा. आंसर गलत दे रहे हो. काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं. हिंट दे रहा हूं, इतना हिंट दे चुका हूं. वेरी गुड. एक बच्चे ने आंसर सही दिया. काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं. ऑलराइट, चलो मैं आपको समझा देता हूँ. लेट मी टीच यू नाउ. लेट मी टीच यू दिस क्वेश्चन. देखो, हाईली स्ट्रेन मींस हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन. एंगल स्ट्रेन, एंगल में बहुत तनाव है, बहुत सब आसपास हो रखा है. अच्छा देखो बेटा, जब भी सिल्वर दिखे, सिल्वर हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हेलोजन. जब भी वो हेलोजन को देखता है, इट विल मेक श्योर दैट हेलोजन विल कम आउट एज Br माइनस और X माइनस फॉर्म एंड इट विल फॉर्म AgBr प्रेसिपिटेट. क्या बना दे? AgBr का PPT बना के सेटल डाउन हो जाए. सिल्वर को बहुत लगाव है हेलोजन से. एफिनिटी का मतलब प्यार. ठीक है. व्हेनेवर सिल्वर विल सी Ag प्लस विल सी देयर इज अ Br, इट विल ट्राई टू गेट Br इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस एंड फॉर्म AgBr PPT. As a result of doing so, what I will end up with, sorry, I'm really sorry. As a result of doing so, what I will end up with, I will end up with a 7-membered ring. अगर आप notice करो, isn't it a 6 pi electron system? Isn't it cyclic? Isn't it planar? Right? Isn't it aromatic? Correct? Follows Huckel's rule. Huckel's follow करता है. Follows Huckel's rule. मैं यहाँ लिख देता हूँ. I think Huckel आया नहीं है. Follows Huckel's rule. Correct? तो यानी कि yes, it means compound is aromatic. If aromatic is, it is aromatic. It is highly stable. Energy is very less, but resonance energy is very high. Resonance energy is very high. In the option, it has been mentioned product has less resonance energy. No, it is the incorrect statement. C. Answer is option C. सबको समझ आया? I will not take surface chemistry beta right now. Surface chemistry, I have already given up some lectures. You can notice there. You can see in our Vedantu's channel. मैंने वहाँ पे surface chemistry पढ़ाया है. सबको क्लियर हुआ? नाइट्रो ग्रुप का कुछ नहीं है बेटा. वो तो एक काउंटर आयन है. NO3 माइनस पड़ा रहेगा सोल्यूशन के अंदर. स्पेक्टेटर रहेगा. इट विल जस्ट कीप ऑन लुकिंग. राइट नाउ आई एम लुकिंग एट यू बट यू कांट लुक एट मी. सेम चीज ऐसे ही चल रहा है. सबको क्लियर हो रहा है? तो इट्स जस्ट अ स्पेक्टेटर आयन और उसका कुछ काम नहीं है वहां पर. One second. Let me just arrange my phone so I can read your chats throughout. अरे यार, yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं. चलो ठीक है बेटा. अरे why not be? जब एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है उसमें डाइपोल मूवमेंट आ जाती है. Because electron density starts moving here and there, it becomes polar because the distribution of charge keeps on happening. End पे 2 ends आ जाते हैं.
distribute, whenever electrons start delocalizing, it becomes dipole. It gets polar in nature. ठीक है? B is the correct statement. When electron density will start circulating around, ऐसा तो होता है इसका structure. When electron density will start circulating around, beta, it will have a dipole as well. जितना जल्दी लंबा हो जाए, जितना जल्दी हमारा सिलेबस ये क्लास खत्म हो जाए, चलेगा बेटा, 1-2 घंटा तो होगा ही, है ना? 1 घंटा हुआ है, अभी 1-2 घंटा तो लगेगा, जितना भी टाइम लगे. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अमेजिंग सवाल है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन है. देखता हूं कौन आंसर देगा. अब ये पूछ रहा है हाउ द हाइड्रोजन वुड बी रिमूव्ड. हाइड्रोजन कैसे निकाला जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. सी आई एम गेटिंग द आंसर्स. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. लाइकिंग इट यार, लाइकिंग इट ऑलरेडी. बहुत सही, बहुत सही. देखो बच्चा, इसका आंसर है ऑप्शन ए. आंसर क्यों रुक गए? आंसर आंसर करो जल्दी जल्दी. यस, आंसर इज ऑप्शन ए बेटा. देखो, अगर ये H प्लस की तरह जाएगा, आपको यहां नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा. कुछ नाम सुना है? साइक्लो, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटाडाइनाइल, dianyl anion. Isn't it aromatic because it is 6 pi electron system? ठीक है. Isn't it planar? Isn't it cyclic? तो इसको क्या बोलेंगे हम? It is following Huckel's rule. It is aromatic compound overall, right? ये Huckel's rule follow कर रहा है. So this compound is aromatic, and yes, जितनी जल्दी से H plus will be fired away, it will become aromatic. So how H plus will be fired, or how hydrogen would be fired in the form of H plus? सबको समझ आया? क्योंकि H प्लस जैसे ही बाहर निकला, कंपाउंड बिकम स्टेबल, हाईली स्टेबल. रेजोनेंस के लिए आदमी आप क्यों लोग पढ़ रहे हो? बिकॉज यू वांट टू बिकम स्टेबल. कंपाउंड भी स्टेबिलिटी ही चाहता है, एंड स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी कर सकता है. सो इट विल फायर अवे द H इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड इट विल बिकम एरोमेटिक. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, आदमी स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता है. कंपाउंड्स आर नो डिफरेंट. वेरी गुड. मूविंग ऑन. बहुत अमेजिंग सवाल है. जल्दी से कर्व्स के बारे में बताओ, क्या आंसर होगा? गुड, अ जेम ऑफ अ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. लेट मी नो. ये बच्चे पूछते हैं व्हाई नॉट सी. अरे रेडिकल है भाई, क्यों? यहाँ पर फिर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे यार. थोड़ा तो दिमाग लगाओ मेरा बच्चा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको भी. यहाँ पे रेडिकल आएगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. कैसे फिर बात बनेगी? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, इसलिए सी ऑप्शन नहीं है. अब मुझसे कोई पूछ रहा है बेटा हक्कल रूल क्या है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा. आई एम सॉरी. थोड़ा सा तो आपको मेरे को मेरी बात भी माननी पड़ेगी, थोड़ा आपको भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, राम कथा चल रही है यहाँ पे लंबी सी, पर थोड़ा तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा. ठीक है, सॉरी बेटा, मैं नहीं बता पाऊंगा अभी हक्कल रूल, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए. इसका आंसर बताओ बेटा. SN1 कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है? SN1 और SN2 को प्रॉपरली कंपैरिजन करते हुए कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है? ये एक जेई का सवाल है. सारे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूं यार आप जैसे, आपके लिए. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी. अगर आपको नोटिस करना, इतना दिमाग लगाना, SN2 रिएक्शन कौन देता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, आपको पता है 123. और अगर आपको मिथाइल हैलाइड मिल गया तो बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट सिचुएशन है. ये तो सबसे पहले देखा. देखो, मिथाइल हैलाइड हुआ तो SN2 होगा, और अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, वो SN1 देगा. राइट? तो यहां पर देखो SN1 के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इफ इट इज अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, SN1 जल्दी से कर देगी. इफ इट इज अ मिथाइल हैलाइड और अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, SN2 हो जाएगा, तब वहां पर SN2 हो गया. पर इफ यू हैव सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड, नोटिस करना, एक है 123 SN2 और एक है 321, यह है SN1. सेकेंड डिग्री जो अल्काइल हैलाइड है कम्स इन बिटवीन. तो देखो यहाँ पर सेकेंड डिग्री में कुछ भी हो सकता है. SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है. नाउ इट डिपेंड्स
कि आपका नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा है. इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इट विल गो फॉर SN2. If it is a weak nucleophile, it will also go for SN1. It can also go for SN1. So now आपका अगर reagent आपका alkyl halide is set, now rate of reaction also depends upon nucleophile. अगर आपने condition ऐसी दे रखी है in which nucleophile is very strong, it will go for SN2. 2 डिग्री यहाँ पर SN2 में चला जाएगा. If you take a weak nucleophile, it will go for SN1. If you use polar protic solvent, it will go for SN1. If you use polar aprotic solvent, it will go for SN2. ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए. अच्छा सवाल था, बढ़िया सोच क्वेश्चन था, सबको समझ आया, क्लियर हो गया. आगे बढ़ रहे हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं. रेजोनेंस होता क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है. इट इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. देन वी गेट सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आते हैं. वी गेट सम क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू कंपेयर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. उस क्वेश्चन को कैसे कंपेयर करें बेटा, उन क्वेश्चंस को कैसे कंपेयर करें, तो कुछ रूल्स होते हैं. ये रूल्स आपको पढ़ने हैं. Resonance form in which all the atoms have complete valence shells are more stable. जिधर सारे एटम्स में वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड हो, फुल हो, उसे वो ज्यादा बढ़िया माना जाता है. Compounds in which having more covalent bonds, that resonating structure is much more stable. दूसरी बात. तीसरी बात, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज होगा, मतलब आपका न्यूट्रल कंपाउंड्स आर बेटर, वो ज्यादा बढ़िया रहता है. इफ देयर इज अ चार्ज कंपाउंड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इफ यू विल सी अ चार्ज कंपाउंड, चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ टू पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अगर आपके पास positive और negative charge हुआ, it should be very near to each other. If there are like charges like positive positive negative negative, they have to be far apart from each other. But अगर आपसे पूछा जाए कौन सा compound बढ़िया रहता है, which does not have any kind of charge on it, neutral resonating structures are better. ठीक है, यही चीज को याद रखते हुए एक क्वेश्चन आपको दे दिया है. One question I am giving which is on your screen. Let me know what is the correct answer. What is the correct answer? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर. जल्दी से बताओ. यस, PDCH इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बेटा, द वॉइस ऑफ इंडिया है ना. अब मुझे इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. द एनर्जी विच इज रिलीज्ड. यस बेटा, हक्कल रूल तो एनसीईआरटी का ही है. वेरी गुड. कुछ बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा गलत दे रहे हैं. कीप ऑन आंसरिंग. रुको मत बेटा, आंसर करते रहो. कीप ऑन आंसरिंग. बहुत अमेजिंग यार, रुकना नहीं है. वी हैव टू कीप ऑन आंसरिंग. ठीक है. बढ़िया, तो काफी सारे आंसर आ गए. देखो बेटा, आंसर इज बी. आंसर इज बी. मैं समझाता हूं कैसे. देखो, फर्स्ट वन इज सॉर्टेड. You are getting positive and negative charge very near to each other, and you notice all the compounds, all the elements in this particular compound are having a complete octet. उनका octet पूरा complete है, check कर लो. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन, एक डाउट आता है थर्ड और सेकंड के बीच में. देयर इज अ हेवी कंपटीशन बिटवीन थर्ड एंड सेकंड. व्हाई थर्ड इज मोर स्टेबल? बिकॉज इफ यू नोटिस, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन ऑप्शन नंबर 3. यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 4. यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 3. मतलब मैं बीच की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे सिर्फ 3 आए. वैसे नॉर्मल और 2 ऐड कर दो, +2. यहाँ पर भी आप +2 ऐड कर सकते हो. more the covalent bonds, more will be the stability. Hence third is more stable than second. I hope you got my point यहाँ पर. Moreover, in second compound the opposite charges were far away from each other. वो एक दूसरे से far थे. हमारे को ऐसा क्वेश्चन नहीं, हमारे को समझना है these opposite charges must be nearby. And fourth is least because आप देख ही सकते हो, carbon is getting the negative charge, this is getting the positive charge, and again they are far away from each other. They are far away from each other. Positive charge mostly should come on electropositive element and negative charge should come on electronegative element. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी. आई होप इट इज क्लियर. मैं आगे बढ़ूंगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, बड़ा ही अमेजिंग सवाल है. जल्दी से मुझे आंसर करो. What is the correct answer to this question? Let me know what is the correct answer to this question. जल्दी जल्दी बताओ.
व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? बहुत अमेजिंग रिएक्शन है ये। तो काफी क्वेश्चन साइज है, बड़ा हुआ है। देखो ये R है, दिस इज R, इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है R। अब मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। वाओ, मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड गिविंग आंसर्स। जिसको नहीं आता नो वरीज यार, नो वरीज। जिसको नहीं आता लेट मी नो, बट आंसर ऑनेस्टली करना है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन बी। जरा समझाता हूं कैसे। दिस इज SNI रिएक्शन, इन्वर्जन, यू नो। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया रिटेंशन, SNI हो जाता है। दिस इज नॉर्मल SN2 रिएक्शन। इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine and it is happening in the presence of ether। होता क्या है जरा चेक करो। when you will have this kind of situation, R S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर लगा दिया आपका Cl, OCl। इसको मैं हटा देता हूं, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस अप, 1 सेकेंड। हाँ जी, लेट मी जस्ट क्विकली इरेज इट। ये आपकी SNI रिएक्शन है, एक SNI रिएक्शन है बेटा, और एक आपकी SN2 रिएक्शन है। ये याद रखना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बड़ा सिंपल सा हिंट दे देता हूँ। जब भी आपका pyridine होता है thionyl chloride के प्रेजेंस में, if you will react in the presence of ether, the reaction would be SNI, chlorine will come on the same side, it is retention of configuration। यहाँ पे क्या हो जाती है, retention of configuration। जो R है वो R ही रहेगा, this compound will remain R, but in the presence of pyridine back attack of Cl minus will take place। यहाँ पे जो Cl minus है वो back attack करेगा। सो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इन्वर्जन। सो अगर आपका कंपाउंड R था वो S बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज बी। मैं फिर से बोलता हूँ, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, if thionyl chloride is used in the presence of only ether, you will say SNI reaction, back attack will not happen, retention of configuration will happen। And if it is happening in the case of, if you are using in the presence of pyridine, what will happen, it will happen, back attack will happen and you will get R का S बन जाएगा, inversion of configuration will take place। ठीक है, that's RNS या ठीक है, सबको समझ आ गया। आगे बढ़ूंगा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 बता दो मुझे, व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18? लेट मी नो यहां पे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। वी विल टेक रीसेंट जेई ईयर क्वेश्चंस, हमने लिए हैं लास्ट अपनी उसके अंदर भी। हम रीसेंट जेई क्वेश्चंस भी लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन 20th व्हेन आई विल टेक MCQs। आई विल टॉक अबाउट द रीसेंट 10 ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, डोंट वरी, दैट विल आल्सो हैपन। नाउ व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? बहुत सही चल रहा है, कीप ऑन टेलिंग मी बेटा, I can notice your chats। ऑल राइट, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा। यहां पर जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर कैन अंडरगो रेजोनेंस। जब रेजोनेंस में चला जाएगा, देयर विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर PDCH। एज अ रिजल्ट this single bond will become double bond, it will acquire the nature of a double bond। so bond length of A would be less than B, because B के अंदर there is no resonance, यहाँ पे no resonance, for this particular bond there is no resonance। I hope the point is clear, answer is option B। I hope the answer is point is clear, the answer is option B। ठीक है, सबको समझ आ गया है? क्या आगे बढ़ जाऊं? This was easy enough, but many of you still got it wrong। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे चलो इसको छोड़ दो, मैंने इसका आंसर दिखा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 20। लेट मी नो व्हाट इज द आंसर,
मूविंग ऑन, जल्दी जल्दी बताएंगे व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एवरीवन विल टेल मी सर दिस व्हाट इज द करेक्ट आंसर. बहुत अमेजिंग सवाल है, जल्दी से मुझे बताओ. हाउ मच इज लॉन्गर इज द सेशन? एज लॉन्ग एज यू वांट इट टू बी. बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर दे रहे हैं. क्वेश्चन है नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट मींस म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. बेटा इफ यू नोटिस ऑल दी ऑप्शंस, देखो पहला वाला क्या है, here is a lone pair, here is a lone pair, it will get cancelled. Dipole moment here would be zero. यहाँ पे लाइन लोन पेयर है, वहां पे लोन पेयर है. डाइपोल मूवमेंट वुड बिकम जीरो, म्यू वुड बिकम जीरो. दो एंड पे लोन पेयर है, इट विल बिकम जीरो. सिमिलरली इफ यू नोटिस हेयर हेयर, इट विल आल्सो गेट कैंसल ना, फ्रॉम इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. डाइपोल मूवमेंट विल बिकम जीरो. Here also the resultant of three, these all will, the resultant would be in such a manner of the dipole moment, at the end it will cancel out each other. सबको cancel out कर देगा. पर if you notice this compound is a cis compound. इसको ऐसा समझना, keep this in mind. This, मान लीजिए ये अगर आपका compound है, this is your square. One OH is coming towards you, another OH is also coming towards you. So the net dipole will come right at the center. एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है. So they are going to withdraw the electron density like this. The net dipole moment will be at your face, बिल्कुल right on your face actually I should say. बिल्कुल मुंह पर आके उसका dipole moment गिरेगा. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन A is the right answer. ठीक है, A is the right answer. अगर ये ट्रांस होता, if it would have been a trans, one is above, मान लीजिए one is above, one is below, then dipole moment would have become zero. But this is a cis compound. सबको समझ आया? एक क्लियर हो गया है? सबको समझ आया? All right. Moving on. Show the previous question. ले ले यार, देख ले, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. Take a screenshot of it. You can use it as a homework. में इसका आंसर लिख देना, जिसको समझ आए कि हाँ सर मुझे डी आंसर निकल गया था. Let me know in the chat box. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ूंगा. बहुत ही अमेजिंग सवाल. दिस इज अ होमवर्क फ्रॉम माय साइड, डू नॉट आंसर एनीथिंग. दिस इज अ होमवर्क फ्रॉम माय साइड. आई वांट यू टू ड्रॉप डाउन द आंसर. ठीक है, चैट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है. इस टाइम 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं. 1000 kids are watching right now. I want 1000 response down there. मतलब सबका एक एक रिस्पॉन्स आना चाहिए. ठीक है बेटा जीसस, हैं सबका आना चाहिए. तो यहां पर आपको ड्रॉप डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, नॉट हियर, इन द कमेंट बॉक्स. 1000 आंसर आने चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है जीसस. जरा जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर. लेट मी नो what is the answer. You can say the numerical, you can say whether it is 2 3 4 5 बोल सकते हो. 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वैसा बोल सकते हो. 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप बोल सकते हो. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. ऑल राइट. चैट बॉक्स में काफी खलबली चल रही है. आई लाइक इट. आंसर इज देखते हैं जरा. देखो, दिस इज योर एस्टर. अगर मैं देखूं, दिस इज नथिंग बट एस्टर बोथ. तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश मान लेते हैं. तो इफ यू विल टेक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स, देखो बेटा ये क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज. फर्स्ट दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक हेयर, OR would be out. What you will end up with? You will end up with R C double bond. एक ही स्टेप में दिखा दिया मैंने, R double dash. ये कीटोन बन जाता है. So 1 mole is utilized in this process. इसी को जब ये कीटोन बन गया, when you will take excess, another Grignard reagent will come. Here partial negative, partial positive और negative positive. यहाँ पे अटैक मारेगा कुछ इस तरीके से. It will make a 3 degree alcohol. आपका फेवरेट कंपाउंड बना देगा क्या? अल्कोहल, राइट? योर फेवरेट कंपाउंड वुड बी फॉर्म एंड यू विल एंड अप विद
this particular compound. Are you getting my point? So how many moles were utilized? Actually 2 mole. Since there are for one ester, there are 2 moles of Grignard reagent were utilized. For 2 esters, how many would be used? 4 would be used. सबको समझ आया? MS चौहान क्वेश्चन ऑप्शन 4. चलो आपको पता था MS चौहान का क्वेश्चन है तो बढ़िया, अच्छी बात. और मैंने कब मना करा? MS का नहीं है ना? आगे बढ़ूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो हमें को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको तरीका बताया, 1 सेकंड में आपने आंसर निकाल दिया. ठीक है, अब चलते हैं. अरे वाह, लव दिस क्वेश्चन. क्या प्यारा सवाल है यार, ये बहुत अमेजिंग सवाल था. मैंने एक बार करा था, मेरा गलत हो गया था, दूसरी बार में मेरा सही आया था, एंड आई वाज लाफिंग कि इतना सिली क्यों हो गया मेरा आंसर. जल्दी से इसको आंसर करिए, बहुत प्यारा सवाल है. आप एक ही बार में निकालोगे आंसर, बिकॉज यू गाइज आर ऑसम. यू हैव टू टेल मी इन वन गो व्हाट इज द राइट आंसर. लेट मी नो. किसी ने बच्चे ने पूछा कि हाउ डू यू सी सर 2 मोल. इफ यू नोटिस ये 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है. इसका मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने लिया है RMgX मस्ट बी इन एक्सेस. और जब एक्सेस में यूज कर रहे हो तो एक्सेस में जब यूज कर रहे हो तो यानी कि आपको कितने मोल लगेंगे? 2 मोल लगेंगे एक एस्टर के लिए. तो 2 एस्टर के तो 4 मोल लग गए. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा बस मैंने ये लॉजिक लगाया क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल था. इसका मतलब क्लियर है. इट इज इन Grignard reagent is used in excess. So how many moles would be used? I told you. अच्छा, अब यहां पर इसका आंसर कर दो बेटा. क्या आंसर है इसका? काफी बच्चे ए बोल रहे हैं इसका, तो आप वही गलती कर रहे हो जो मैं गलती कर गया था. इधर 2 मोल हैं पूरे. That are not given yet, yaar Venki. Those gates are not given exactly now. A is not the answer. Let me show you. Let me help you. B is the answer. Check this out. बड़ा अमेजिंग सवाल था. ये भी एस्टर ही था. तो आप अपना बेसिक मत भूलो. आपका बेसिक वही था. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? CH2 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 MgBr. यहां पर CH2 माइनस होगा. तो इसने मारा अटैक कहां पर? इधर. और ये इधर पहुंच गया. तो ये रिंग खुल गई. रिंग ओपनिंग हो गई. दिस इज व्हाट? दिस इज अ रिंग ओपनिंग रिएक्शन. ये रिंग ओपनिंग हो गई. ये आ रहा है आपको सबको? इतना समझ आया? ये समझ आया? देखो क्या बन गया. यहाँ पे काउंट कर लो. 1 2 3. तो मैंने लिखा O माइनस CH2 का कितनी बार CH2? थ्राइस. फिर यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O. यहाँ से अटैच हो गया क्या आपका? Gr. दिस इज योर Grignard reagent. CH2 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 MgBr. ये सबको समझ आया? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है. काफी बढ़िया क्वेश्चन है. सबको समझ आ रहा है? ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है. ये आपका Gr हुआ. सबको समझ आया? बातें नहीं. इतना क्लियर हुआ है? जस्ट लेट मी नो यू अंडरस्टूड दिस वन. नहीं आ रहा है समझ? 2 मोल थे बेटा, 2 मोल थे. देखो यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. ऐसा कुछ था मान लो. तो यहाँ पे आपका पहली बार RMgX आएगा, उसे रिंग को तोड़ेगा ना. इट विल बी रिंग ओपनिंग. क्या मिलेगा आपको? ऐसा कुछ मिलता? यही मैंने करा है. आई हैव डन नथिंग बट दिस ओनली. ठीक है, यही चीज मैंने करी है. अब दूसरा मोल है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्बोनाइल सेंटर. तो आप काउंट कर लो. 1 2 3 4. 5th वाले पे अटैक मारेगा. ये मारेगा अटैक 5th वाले पे. तो ये रिंग क्लोजिंग हो गई. दिस इज रिंग क्लोजिंग रिएक्शन. और आपको कितने मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी? 5 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी. देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग आई रिसीव्ड. एंड एट 1 नंबर कार्बन you have to make sure on 5th number carbon this group is attached. चेक कर लो. ये यानी कि ये 5 होना चाहिए. दिस इज 5, दिस इज 4 3 2 1. ठीक है, सबको समझ आया? 1 और 5 का लिंक केरा. आई होप इट इज क्लियर. और 5 पे एक O माइनस भी आएगा. देखो O माइनस भी आ गया. इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो आपको एक ये कंपाउंड मिल गया.
सबको समझ आया? क्या क्लियर हुआ? एक काफी बढ़िया क्वेश्चन था। सबको समझ आ गया? गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? अंडरस्टूड इट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो काफी बच्चों को समझ आ गया। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे हताश हो गए, कुछ बच्चे छोड़ के चले गए चैट। चलो आगे बढ़ता हूं। आसान क्वेश्चन वंस मोर, एक बार लास्ट समझा देता हूं। देखो बेटा, अब क्या था? 1 मोल वॉज यूटिलाइज्ड, 1 मोल वॉज यूटिलाइज्ड। नाउ सेकेंड मोल, सिंस इट इज देयर, इट विल अटैक अगेन, इट विल अगेन अटैक हेयर। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसने मारा अटैक और ये रिंग क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ पे O माइनस का चार्ज आएगा। देखो O माइनस का चार्ज आ गया, इसको भूल जाओ। क्या ये O माइनस का चार्ज दिख रहा है 5 मेंबर्ड रिंग में? ये बन गया। फिफ्थ नंबर कार्बन से आपको CH2 थ्राइस O माइनस भी लगा हुआ है, ये रहा, ये लगा हुआ है। एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ आ गया है। ठीक है, आधा घंटा और बैठते हैं बेटा। कुछ बच्चे लंच के बारे में बातें कर रहे हैं। नहीं, 5 मेंबर यहाँ बन जाती है, इट इज नॉट दैट अनस्टेबल। ठीक है, विल हाफ एन आवर मोर विल सिट। ठीक है, तब तक खत्म हो जाएगा। तो बी मोर पेशेंट, कुछ अच्छे सवाल हैं आगे, है ना? छोड़ना मत, बी इन द चैट, छोड़ के मत जाओ, आपका फायदा ही होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। बेशु बे बेहू मोरॉय, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन थोड़ी है, रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग का आइडिया, ओपनिंग क्लोजिंग का आइडिया ऐसा लगा क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन का एक और मोल पड़ा हुआ था। ठीक है, सो बी मोर पेशेंट, थोड़ी देर और, आधा घंटा। कैन वी डू इट? Shall I expect all my sailors to stay till the end? All the 1,000 students will stay till the end. You will not go. Shall I expect this much patience from my sailors? Right? Can we move on to the next question? Move on to the next question. Yes. All right, so people, I'm not able to see your name. Some of you are asking for a shout out. I'm really sorry, but all you guys are awesome. I'm really sorry, you have to be with me, you have to stay till the end. काफी amazing questions पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, so be here. All right, बढ़िया। अब next question। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर गया है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था यार। आप देखो, बातों में मैं भी चला गया आपके साथ। which halogen will be the best will give the best yield in single monohalogenation? बेटा आंसर इसका होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज क्वाइट सेलेक्टिव, काफी सेलेक्टिव रहता है ब्रोमीन। आप हमेशा ये चीज याद कर लो, इट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस क्वेश्चन केम इन जेई, कुछ साल पहले ये क्वेश्चन आया था। मेनी स्टूडेंट गॉट इट रॉन्ग, उन्होंने Cl आंसर कर दिया था, बट क्लोरीन इज नॉट द आंसर। ठीक है, क्लोरीन काफी सेलेक्टिव नहीं है, क्लोरीन काफी रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन इज सेलेक्टिव, इट सेलेक्टिवली अटैक्स at those positions which are stable, ठीक है, which are more stable। जो फ्री रेडिकल बनता है, क्लोरीन उस फ्री रेडिकल पे अटैक करना प्रेफर करता है which is more stable and it is more selective। ठीक है, सबको समझ आया? NBS की भी एक इसकी रिएक्शन रहती है, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, जहां पर ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। तो काफी बच्चों ने लास्ट टाइम गलत किया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है, तो इसको याद रखना। आयोडीन तो बेटा वो बनता ही नहीं, आयोडीन इज नॉट अ वेरी गुड, आयोडीनेशन करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है ना? बड़ा बड़ा कंपाउंड रहता है एक तो, वापस रेडिकल फिर से आयोडीन बन सकता है, और समटाइम्स रिएक्शन को कैन गो बैकवर्ड्स एज वेल, बिकॉज वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट भी बनने लग जाता है। ठीक है, जब आप करना साथ चलते हो, किसके साथ? आयोडीन के साथ चलते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयोडीन के बारे में भी बता दिया मैंने। आगे बढ़ता हूं। कैन आई गिव दिस क्वेश्चन एज होमवर्क? क्या ये मेरी तरफ से एक होमवर्क हो सकता है? या चलो करते हैं। ये 11th क्लास का काफी मशहूर क्वेश्चन है, 11th क्लास का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड, एमबीएस देखा है आपने, वेरी नाइस। थैंक यू तृप्ति। जल्दी से मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? बहुत फेमस रिएक्शन है HOCl की विद प्रोपीन, एल्कीन्स की रिएक्शन इसके साथ, HOCl के साथ। यस तृप्ति, आई मेंशन योर नेम। यस, काफी बच्चे इसका भी आंसर गलत दे रहे हैं, कुछ सही दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए।
थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, ऑल राइट। My percentage in 12th was 85%. आयुष, ऑल राइट। तो सबका आपने आंसर करा। देखो इसका आंसर है ऑप्शन ए बेटा। काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत करा है, विच इज सरप्राइजिंग, आई डोंट नो व्हाई। आंसर इज ए बेटा। जरा ध्यान देना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। HOCl में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है that chlorine gets partial positive, oxygen is more electronegative, so it gets partial negative. And since this is your reagent, it contains both. It contains electrophile as well as a nucleophile, but in the RDS, in the rate determining step, electrophiles attack. ठीक है, electrophile पे attack हो जाता है, और electrophile attacks in such a manner that more stable carbocation is formed. More stable carbocation is formed. After that, OH minus will attack here, and you will end up with this. So intermediate is this. यहां पर आपसे कोई पूछे कौन सा रिएक्शन है, कौन सी एडिशन रिएक्शन, इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स देन इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. आरडीएस में जो अटैक करता है वही माना जाता है, वही नेम हो जाता है रिएक्शन का. दैट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन. दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इज दिस क्लियर? सब कुछ समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए. क्लियर हो गया बच्चों? व्हाट इफ में मत जा बेटा, व्हाट इफ में मत जा, जो है वो है. बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है. आई हैव डन दिस क्वेश्चन इन किलर 5 एज वेल. मैंने किलर 5 में भी ये पढ़ाया है. ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन हैव कम अप इन एडवांस एज वेल. ये आपका एडवांस का क्वेश्चन, मैंने किलर 5 सीरीज के अंदर भी पढ़ाया है. ये क्वेश्चन वापस वहां से लिया गया है क्योंकि काफी काफी फेमस क्वेश्चन है. रौनक, तब AI EEE होता था. दैट टाइम JEE नहीं हुआ करता था. देखो मैंने इसको काफी अच्छे से समझाया हुआ है. NBS की आज बात भी कर रहे थे. देखो ध्यान देना. तो फर्स्ट स्टेप, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं बट नॉट अप टू द मार्क, नॉट अप टू द मार्क. कम ऑन एवरीवन, गिव योर आंसर्स. आई एम वेटिंग फॉर इट. 860 स्टूडेंट्स आर देयर और 1000 कितने बच्चे हैं देखो, मुझे नहीं दिख रहा. 860 स्टूडेंट्स, राइट. सारे आंसर देंगे बच्चा. बहुत बढ़िया. चलो अब देखो मैं इसका आंसर समझाता हूँ. NBS बेटा आपको पता है, इट इज फेमस फॉर मेकिंग, इट इज फेमस फॉर मेकिंग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने का एक मशहूर है. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज. यहां पर रेडिकल बन जाए या यहां पर रेडिकल बन जाए. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. नाउ पे अटेंशन. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. वेयर BR शुड गो, ऑन 1 नंबर पोजिशन और 2 नंबर पोजिशन. लेट मी नो. आपके हिसाब से मैं BR को कहां लगाऊं, 1 नंबर पोजीशन और 2 नंबर पोजीशन. डोंट गिव मी आंसर नाउ. लेट्स ब्रेक दिस क्वेश्चन वन बाय वन. कहां लगाऊं, 1 नंबर पोजीशन या 2 नंबर पोजीशन? आप बताओ. 2 बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 1. 2 ज्यादा मात्रा में बच्चे बोल रहे हैं. हाँ, 2 पे लगाया जाएगा बेटा, टू मिनिमाइज द स्टेरिक हिंड्रेंस. बिकॉज आप देखो यहां पर एक बड़ा ही बल्कि ग्रुप 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप इज देयर. अगर ब्रोमीन वहां लगा दिया तो भैया रिपल्शन होने वाली है. देयर विल बी अ लॉट मेनी रिपल्शन. तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने सेकंड पे लगा दिया. बात समझ आ गई? ठीक है. अल्फा दोनों में सेम है, ऐसी बातें मत कर. टू कोई अल्फा हाइड्रोजन गिन रहा है, बिल्कुल गलत गिन रहा है. बिल्कुल वही सेम ही है. और 2 पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है. ठीक है, ऐसे करके भी देख सकता है. ठीक है. और वैसे वैसे 2 पे हल्का सा एक अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा. चलो आई विल गिव यू दैट. हाँ चलो. अगर इतना हमारे को आ गया बेटा, अगर इतना हमारे को समझ आया कि यहाँ पर ये लग गया. नेक्स्ट, K2 H2O K2CO3 is a classical way of saying that the condition is slightly basic. It's a basic medium. It's a very beautiful way of saying that you have taken a slightly basic condition.
slightly basic condition. तो Br would be replaced by OH. Br would be replaced by OH. यहाँ पे ये OH आ गया. अच्छा, बच्चे कुछ कहेंगे सर पर इन द ऑप्शन, वो तो उन्होंने ऐसे करके बनाया हुआ है, हमारा तो आंसर ऐसा आ रहा था कुछ, हमारा आंसर आ रहा है ये. बच्चे कहेंगे सर बट इन दी ऑप्शन तो आंसर तो OH तो राइट साइड में लगा हुआ है. मैं बताता हूँ क्यों लगा हुआ है. हमारा ऐसा कुछ था रेडिकल. क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? कैन आई मेक अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यस आई कैन. ये बना दो. तो उन्होंने आपका आंसर इधर OH लगा दिया. कंफ्यूज मत होना उससे कंफ्यूज मत देना. उल्टा कुछ नहीं है, बात एक ही है. क्या मैं अपनी बात समझा पाया? क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? बच्चा कहेंगे अरे सर तो राइट में लगा हुआ है, गलत हो गया. गलत नहीं है. ठीक है, समझ आ गया? मैं अपनी बात समझा गया, सबको क्लियर हो गया है? Yes, this is also in Killer 5. I will recommend you watch my Killer 5 series also. Now you have time. I have done there some advanced level problem as well. आप Killer 5 सीरीज जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा करेगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बड़ा मजा आएगा आपको. वहां पे एडवांस लेवल क्वेश्चन भी काफी हैं. ठीक है, बढ़िया. समझ आ गया है? क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे. जल्दी से इसका आंसर कर दो. बहुत इजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन है. जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर है. जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. बातें नहीं करेंगे यहाँ पे. मैं कुछ बच्चे देख रहा हूँ आपस में बातें कर रहे हैं. हाँ, मैंने बताया था, किसी ने मेरी बात भी सुनी है. मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि एलिमिनेशन भी, देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी फॉर एलिमिनेशन, बट वो मैं जान के इसमें नहीं जा रहा क्योंकि वहां पर ऑप्शंस में एलिमिनेशन की बात नहीं हुई है. ठीक है, ऑप्शंस में एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर तो जो देखा जाएगा, मैंने किलर 5 में बात की हुई है. लिटरेचर में मेंशन है जब भी एलाइलिक रेडिकल बन जाता है एंड इफ यू गेट टू सी K2CO3 जहां बेस आ रहा है, तो देर इज अ पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन प्रेफर हो जाता है. इवन इन स्लाइड बेसिक मीडियम एलिमिनेशन हो जाती है लिटरेचर के हिसाब से. बट सिंस ये क्वेश्चन बड़ा आसान कर दिया बाय गिविंग द ऑप्शन इन विच देर इज नॉट अ एलिमिनेशन केस, ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, इसलिए इसकी मैंने बात नहीं करी. ठीक है, कुछ बच्चे ने मेरी किलर 5 सीरीज देखी है तो वो शायद जानते हैं इस बात को. ठीक है, तो इसका आंसर कमिंग बैक हियर, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. मेरा नाम हर्ष है यार. व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? काफी बच्चे बी बोल रहे हैं, सारे बच्चे बी ही बोल रहे हैं. बिल्कुल सही आंसर. इसका आंसर है क्यों? बिकॉज 2 डिग्री SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी के लिए? 123. 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, एंड सबसे आगे अगर मिथाइल हैलाइड आ गया तो बहुत ही बढ़िया, 123. ठीक है, पी इज द आंसर. वेरी गुड बेटा, जीनियस, जीनी. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन. जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ. बेसिक क्वेश्चन है 11th क्लास का, सीधे. SN2 ऑर्डर करता था, हमने बात खत्म कर ली. जल्दी से इसका आंसर बताओ. वेटिंग फॉर यू गाइस टू आंसर. Organic compound which is formed by 1,1,1 trichloroethane with silver powder. ये विद है ये WITH, विद सिल्वर पाउडर. जल्दी से मुझे आंसर बताओ. All right, so let me discuss the answer. Answer is butene, 2-butene. ये बहुत बढ़िया तरीका है एल्कीन बनाने का. इट्स एल्काइन बनाने का, आई एम रियली सॉरी, एल्काइन बनाने का. इट्स अ ब्यूटीफुल मेथड ऑफ मेकिंग एल्काइंस. ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का बड़ा क्लासिकल तरीका है. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सिल्वर उठाओगे और आप 1,1,1 ट्राइक्लोरो आप जो अपना कंपाउंड लोगे, उससे आपको एक एल्काइन मिल जाएगा. ये आपको लर्न करना है. इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. learn this particular reaction. ठीक है, learn it. It's a memory based question. तो मैंने एक जान के क्वेश्चन उठा लिया, सीधे आता है. ठीक है, तो what was the correct answer? Option C was the correct answer. ठीक है, सबको समझ आ गया बच्चा लोग?
मजा आ गया, ठीक है जी। ट्रिम मत करो सर, ठीक है, ओके। शैल आई मूव ऑन, शैल आई मूव ऑन नवीन? नवीन आगे बढ़ जाओ, थैंक यू नवीन। क्या आगे बढ़ जाओ बच्चा? फास्टर क्लास यार, अगर मैं तेज पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी यार, मतलब क्या चाहते हो यार आप? इसका आंसर जल्दी से दो मुझे, इसका आंसर जल्दी से दो। ये बेटा लाइव चल रहा है क्लास, और क्या, इट्स अ लाइव सेशन। लेट मी नो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू विल गेट द असाइनमेंट पीडीएफ, नीचे लिंक्ड होगा। आई एम लाइव, यस आई एम लाइव। लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी प्लीज एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, जल्दी से आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चा, लव यू टू। जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से, वाओ वाओ, मेनी आंसर्स आई एम गेटिंग, बहुत बढ़िया। बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, वन मोर क्वेश्चन इट विल बी ओवर बच्चा। सो स्टे पुट ऑल माय सेलर्स, कम ऑन। ये एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा, फर्स्ट यू हैव टेकन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है बेटा, ये बन जाता है CHO और ये बन जाता है O-, ये आपका आया कंपाउंड X। देन यू नोटिस ये आपका फॉस्फोरस ईल्ड बच जाएगा। याद है विटिग रिएक्शन? विटिग रिएक्शन याद है क्या किसी को? एक ब्यूटीफुल केस है विटिग रिएक्शन का, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक मारेगा इस एल्कीन पे, इस डबल बॉन्ड पे, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इट इज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ विटिग रिएक्शन, ब्यूटीफुल केस ऑफ विटिग रिएक्शन। यू रिमेंबर विटिग रिएक्शन किस क्या काम के लिए फेमस थी? विटिग रिएक्शन इज फेमस फॉर कन्वर्टिंग C डबल बॉन्ड O टू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। वो किस में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स डबल बॉन्ड O टू फिटिग, नहीं विटिग रिएक्शन, राइट। इट कन्वर्ट C डबल बॉन्ड O टू C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O को C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट करता है। तो इसका मैकेनिज्म देख लो, जैसा मैंने यहाँ समझाया, दिस इज योर कंपाउंड, यू नो दिस इज योर कंपाउंड X। अटैक मारा इसने ट्राइफेनाइल फॉस्फीन पे, ठीक है, जो फॉस्फोरस लिखा था मैंने, ये PH3 है यहाँ पर, और है ना, इस पे अटैक मारा इसने बेटा, इसने अटैक मारा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर एंड, विटिग रिएक्शन, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, एंड यू विल एंड अप विद ये आपका PH3 PO, ये आपका बाहर निकल जाएगा, इट विल गो आउट, और आपको क्या मिल गया? एक कंपाउंड साइक्लाइज्ड। सबको समझ आया? क्या क्वेश्चन बढ़िया लगा? समझ आया? सबको क्वेश्चन पसंद आया? बस खत्म होने वाला है बच्चा, बस खत्म होने वाला है। एंड मेक श्योर बाय द एंड व्हेन यू गो आउट बेटा, इट्स अ विटिग रिएक्शन। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? ऑल राइट। तो बेटा अब मैं आपके लिए कर रहा हूं, इफ आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे एंड करते हैं। मेक श्योर व्हेन यू गो आउट लाइक द वीडियो सो इट कैन एक्चुअली बी स्प्रेड, ज्यादा स्प्रेड होगा, यूट्यूब ज्यादा बच्चों को ये दिखाएगा। शेयर द कंटेंट मैक्सिमम यू कैन डू, ठीक है, इतना सा रिक्वेस्ट है। इट्स अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। लाइक शेयर सब्सक्राइब, काफी लाइक करो, जिससे यूट्यूब ऑटोमेटिकली इट विल पुश दिस वीडियो टू योर रिकमेंडेशंस। आपके दोस्तों को भी ये वीडियो फिर दिखने के लग जाएगी, ठीक है। ठीक है जी। सो नाउ let's go ahead, one more question, what is the correct answer to this question? Let me know what is the correct answer for this question, let me know, मुझे जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 800 watching and 1K likes, very nice। जल्दी, लव दी आंसर्स, लव दी वे यू आर आंसरिंग। चलो लेट मी टेल यू, क्या आपको एक ट्रिक बताऊं? शैल आई टेल यू अ ट्रिक? जो बच्चे लास्ट तक टिके हैं उनके लिए एक ट्रिक भी बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू गाइज आर देयर फ्रॉम द मॉर्निंग और आप पूरा सुन रहे हो। सो शैल आई टेल यू अ ट्रिक?
क्योंकि यहां पर काफी बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कंफ्यूजन इसके बाद कभी नहीं होगी। शैल आई टेल यू अ ट्रिक? शैल आई टेल यू अ ट्रिक? Yes or no? Let me know in the chat box. Yes. देखो, many student gets confused whether it is SN2 reaction or E2 reaction. यहाँ पे आपको confusion हो रही है? Are you getting confused here whether it is an SN2 or E2? Are you getting confused? Yes or no? कितने बच्चे confuse हो रहे हैं? हो रहे हैं confuse? काफी बच्चे confuse हो रहे हैं. Many sailors are actually worried right now. SN it is considered as a very strong base, very strong base. If you notice here, it is alcohol and it's alkoxide. It's a beautiful example of a very strong base. And whenever very strong base will happen, it will be present, this particular strong base will always give elimination reaction. Always E2. Always E2. And always E2. ये आपको याद रखना है, हमेशा E2 रखनी है यहाँ पर, हमेशा. और इसको बेटा एक और चीज याद रखना है, E2 elimination reaction happens. This question could have been made much more difficult if I would have talked about the projection. The projection of the hydrogen should be anti-periplanar. मतलब जो hydrogen और bromine, nucleophile will come and abstract the proton, and in the same step bromine will go out. मतलब base आएगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और उसी स्टेप में Br भी बाहर जाएगा. पर तभी संभव है, तभी ये पॉसिबल है when Br and hydrogen are anti-periplanar to each other, means opposite to each other. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, they must be anti-periplanar. अगर यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया होता बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको बहुत काम आएगी ये बात. अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख के दिखा दिया होता, जरा मेरी बात सुनना, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख के लिखा दिया होता कि यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन जो है वो ऐसा है और यहाँ पे एक CH3 है, तो ये निकलना मुश्किल हो जाता, तभी से SN2 जाना पड़ता. Then it has to go for SN2 because anti-periplanarship is not there. Then no E2 नहीं होती. E2 के लिए anti-periplanarship is very very important. Hydrogen and Br must be opposite to each other. एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए. क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज लेट मी नो, ऑल माई सेलर्स प्लीज लेट मी नो, क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूँ? यहाँ पे एंटी पेरिप्लेनरशिप का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एक एल्कीन मिल गया. और ये जब भी दिखे, जब भी आपको बेटा, जब भी आपको ये दिख जाए, ये बेस दिख जाए, समझ जाना E2 ही होगी, सिर्फ E2 होगी. सिर्फ क्या होगी? E2 होगी. क्या मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है. यहां पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है. जब भी आपको ROH प्लस RO माइनस दिख जाए, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट डजंट मैटर. और कभी कभार ऐसा भी होता है बेटा, कभी कभार ऐसा भी होता है, इफ यू ऑल्सो गेट ओनली RO माइनस, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, going to give you again E2 reaction. ये E2 के reagents हैं. These two are E2 reagents only. I hope this will help you in future. ठीक है, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है. एंड एंटी पेरिप्लेनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर E2 रिएक्शन. ठीक है, अब मुझसे कोई पूछे व्हाट इज E2 रिएक्शन, तो मैं अपना हाथ जोड़ लूंगा तो मेरे को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाना, क्योंकि थोड़ा मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है. ठीक है, थोड़ा सा मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है. समझ आया बेटा? ऑल राइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, ऑल माई सेलर्स, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस इज लाइक ओवर नाउ. मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ क्योंकि बच्चे को, बहुत ज्यादा बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि इतना ही कर दो सर, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हमने पढ़ी है, कल हम पढ़ने वाले हैं अपना इसका MCQ वी विल टेक अप ऑन 20th, राइट? एंड 22nd, मार्क द कैलेंडर समवेयर प्लीज. 22nd को बेटा आई विल बी बैक विद अ बैंग अगेन. तब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेशन 2 पढ़ेंगे. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का सेशन 2 पढ़ेंगे, यू नो, सेशन 2. सो यू नो यू हैव टू बी देयर. असाइनमेंट जरूर मिलेगा नीचे आपको, आप उधर जाइए, आपके यू नो टेलीग्राम पे असाइनमेंट जरूर ऐड कर दिया जाएगा. ओके, तो प्लीज अगेन वन मोर थिंग, अगेन फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जिसको अभी भी और सीखना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो. और जिसका कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई एंड स्टिल यू थिंक दैट देयर इज, यू नो, यू हैव, जो बच्चों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली है ना, उसको तो जरूर ज्वाइन करना है. बिकॉज अगर वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, जेई पोस्टपोन हो गया है, जेई हैज बीन पोस्टपोन्ड, राइट?
So now what will happen, you can actually increase your level of preparation by learning more good questions, learning, clearing the doubts which you had still till now, because time was for 5th April, now it will be postponed. तो ये बहुत amazing, आप पे सोने पे सुहागा kind of सारी चीज चल रही है यहाँ पर. It's a beautiful deal for you. You have to buy this because यहाँ पे सारी चीजें होंगी आपको, test discussion, paper discussion and all that. New questions you will come across, the doubts you have you can solve. जो doubts अब तक solve नहीं हुए हैं पिछले 1-2 सालों से, अभी भी वो हो सकते हैं with this crash course. And best part, it's coming very it's coming to you for a very cheap price. Previously it was of 20k, but using my coupon code, if you use my coupon code HMCC, you will get a heavy discount and you'll get this around 3k. सबको समझ आया? 3k से भी कम हो जाएगा. तो सबको समझ आया? Who would be joining in for this particular crash course? It will be awesome for you, right? So I will recommend, please make sure आप इसको ज्वाइन कर लो. ठीक है केशव, ये जरूर ज्वाइन करो. केशव इज माई लिटिल ब्रदर नेम ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पर मैंने देखा, मैंने बोला. ऑलराइट, सो ठीक है बच्चा लोग, मेक श्योर यू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स एज वेल. ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है. इट कैन चेंज योर लाइफ लिटरली बाय लर्निंग सम गुड क्वेश्चंस. यू कैन एक्चुअली क्रैक इजीली. यहाँ पे कंसेप्ट भी दिया जाएगा, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स PCM. ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ आया है, या आपको क्लियर हुआ है. असाइनमेंट विल बी प्रोवाइडेड. ठीक है, आपको मजा आया हो. थैंक यू फॉर टुडे. आई होप यू हैव लव्ड इट. थैंक यू. दैट्स इट फॉर मी टुडे. एंड प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं इतना जरूर बोलूंगा, प्लीज इसे लाइक करो सो दैट इट कैन बी स्प्रेड अक्रॉस द नेशन. जितने भी आपके फ्रेंड हैं, इन सबको स्प्रेड कर दो. लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. लाइक तो बहुत सारा लाइक कर दो, सो ये आगे बढ़ जाएगी वीडियो. प्लीज एवरीवन हियर राइट नाउ हैज टू लाइक दिस वीडियो सो इट कैन YouTube will automatically push it for your recommendation कि ये वीडियो अच्छी है. टाइम आपको कुछ अच्छा मिलेगा इससे. ठीक है, सबको समझ आया है? दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड वन. थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स. बाय बाय. All right, so we are going offline now.